ठीक है. So we'll talk about what we mean by root locus, and we will actually look at something called as how do you define the root locus, how do you sketch a root locus, and how do you use root locus actually in the design of control systems. So audio. So by definition, root locus actually would refer to the locus of those roots actually. Okay. When we talk about, let's say, a basic control system, where we have some sensor, plant, and the controller, okay, and the summation block, then we have seen that we can find out its performance characteristics, like what is the like transient response characteristics, like what is the percentage overshoot, what is the I would say the rise time, what is the settling time for this controller. And we have seen that we can design some controllers which can actually help us improve these characteristics, where we have seen previously also that we used some gain K, capital K, in the forward path transfer function, and where we could see that this gain had an impact on the transient response. Can anyone of you tell me why this gain had an impact on the transient response? Because though it is in the numerator, why it should have an impact on the transient response? Is there anyone from your side? G, I want you to answer. Any one of you? Hello. यस सर. हाँ, बताइए. शेख उमर, यस सर. बताइए. अगर हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम है और उसका जी जो है सर. हम बेसिकली देखते हैं, सपोज ये वाला आपके साथ शेयर करूंगा, ये वाला बेसिक कंट्रोल बेसिक डायग्राम. ठीक है. Where यस we सर. have the forward path transfer function, we have the feedback loop with some transfer function, we have summation block. ठीक है. यस सर. So in this case, I'm saying that if we change K, capital K, that's the gain, and we have seen some problems, we have solved also these problems, and we could see that यस सर. it could lead to a change in the transient response. Yeah, and it could lead to even यस. change in this, or it could lead to change in the stable behavior of the system. It can maybe cause the system to be unstable. Can you explain why? जी, आप में से कोई बताइए. मैंने पढ़ा है आपको. सर हमें गेन है ना मल्टीप्लाइड विद जी ऑफ एस, तो गेन की वजह से क्या होता है सर, जब हम रूट्स क्राइटेरिया बनाते हैं तो सर जो जैसी जैसी हम गेन्स देंगे, अगर वो अनस्टेबल, मतलब कि जितने साइन चेंज होंगे सर, वो हमारा जो ये है, जो हमारा सिस्टम है सर, वो अनस्टेबल हो सकता है ना, क्योंकि गेन एक पैरामीटर है जिसकी वजह से हम स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं. अभी आपने पूरा आंसर नहीं बताया. आप कुछ थोड़ा क्लिक करीब है इसके, लेकिन यू आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द राइट पॉइंट दैट यू हैव टू एक्चुअली मेक. और बताइए. दिस इज ऑल्सो गुड बट नॉट मच क्लियर. I'm asking why capital K, gain, a multiple in the numerator of G of S, will change the transient behavior or even the stability. सर ये प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है ना कि अगर हम वेरी करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज, डायनेमिक बिहेवियर भी चेंज होगा. हाँ होगा, लेकिन क्यों होगा? कुछ सिंपल एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है मुझे. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप बता पाएंगे. बहुत ही सिंपल है. अभी आप खुद कहेंगे ये तो हमें पता ही था, लेकिन आपको सर बताना ये है. इनहेरेंट प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है ना. मैं कह रहा हूँ के जो है ना, कैपिटल के, जो आपको फिगर दिख रही है, के जो जी एस के साथ मल्टीपल हो रहा है, वो उसके न्यूमरेटर में हो रहा है मल्टीपल. तो उससे हमारी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रही है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की या स्टेबिलिटी. सर अगर हम क्लोज्ड लूप इसमें ओपन में नहीं होगा, इसका इफेक्ट कोई भी. अगर इस बनाओ नहीं क्लोज्ड लूप, उसके बाद होगा इफेक्ट.
हाँ, क्लोज लूप में होगा इसका इफेक्ट। इसका आंसर ये है कि ट्रांजिएंट रिस्पांस हो या स्टेडी स्टेट रिस्पांस हो, और इनफैक्ट जो हमारा स्टेबिलिटी है ये सारा डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे, है ना। सर हाँ, जो और डिनोमिनेटर में बनेगी। हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है इस सिस्टम के लिए जब आएगी उसमें के जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। यस सर। इस सिस्टम की अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे वो ये बनेगी, मतलब ना इसका फुल ट्रांसफर फंक्शन जिसको हम कहेंगे क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस फीडबैक। feedback loop this will be like this. So k will come in the denominator now. So because k has come in the denominator, ये हमने सॉल्व भी किया, मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों को क्यों इसमें डाउट लग रहा है। इस तरह की हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व की ना कि परसेंटेज ओवरशूट इतना होना चाहिए, बताइए के कितना होगा, ये मैंने इनफैक्ट एग्जाम में भी दिया था। और एक पर्टिकुलर के बताइए 10% ओवरशूट के लिए क्या के होना चाहिए, इसका क्या मतलब है। के जो होता है गेन, अगर सिंपल गेन की बात करते हैं उसको हम गेन कहते हैं। जब भी इस तरह का कोई पैरामीटर होता है जो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन में आता है उसको हम गेन कहते हैं। अगर जब भी इस तरह का गेन आता है, ये तो लगता है हमें ये फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन पर न्यूमरेटर में है, और न्यूमरेटर से तो हमें कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, हमें डिनोमिनेटर से इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज वही हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिफाइन करता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन this k will actually come in the denominator, and as this k comes in the denominator this forms part of the characteristic equation, and that's why this will impact the roots now. Clear? तभी आपके एग्जाम में जो प्रॉब्लम थी उसमें k लेस देन 120 पे सिस्टम स्टेबल था। तो इसका मतलब k इसलिए इंपैक्ट कर रहा है सिस्टम को क्योंकि k आ रहा है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर से ही हमारी स्टेबिलिटी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और हमारी जो बाकी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के बिहेवियर जो है वो डिक्टेट होते हैं। So k comes into the denominator in the closed loop transfer function. ठीक है? So that's why if we change k, system can go to stable or unstable, state. If we change k, it can change the transient response of the system also. So k becomes our design parameter. Clear? Yes sir. हाँ, तो हमने अब देखा कि इसके बाद हमने देखा कि अगर हम इसकी सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमें ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0 करते हैं, then we can find out its let's say value of k, or we can, if we substitute some value of k, we can find out the roots, है ना। that's how we solve the system. तो रूट्स को फाइंड करने के बाद हम उसका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स बता सकते हैं क्या होगा, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स क्या होगा उसका, सॉरी ना, स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, या इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, वो हम सारा बता सकते हैं। ऑल दिस थिंग इज वेरी इजी यूजिंग राउस क्राइटेरिया इवन, बट at least for transient response this is generally easy for up to second order system. second order system तक हमारी इक्वेशंस बनी हुई है डैम्पिंग रेशियो की, जैसे जो है ना 2 zeta omega n और जो omega n square है, so those things are valid for second order systems. So root locus technique actually is more of a graphical presentation of the closed loop poles. So it is rather mathematical, it becomes a graphical presentation of the closed loop poles. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, closed loop poles. Root locus is about actually closed loop poles as the system parameter is varied. जनरली हम जो अभी तक जो हमने कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ा है उसमें हमने सिर्फ एक गेन ही हम पढ़ते हैं कि वो पैरामीटर वेरी कर सकते हैं, वरना आपने देखा होगा हमने क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा था कि s by s plus a है, वो a क्या होना चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, है ना। वो ऐसा क्वेश्चन भी आपने देखा था। लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल के लिए सिंपली ये एज्यूम करेंगे कि हमारे पास सपोज कोई पैरामीटर है के, गेन है, उसको वेरी करने से रूट्स कैसे चेंज होंगे। ठीक है, रूट्स चेंज होंगे कि नहीं, आपको कुछ समझ में आ रहा है। Yes. देखो अगर के चेंज होगा तो रूट्स चेंज होंगे ना, क्योंकि ये है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। Yes. इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, 1 प्लस के जी ऑफ एस एच ऑफ एस, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर जी एस और एच एस फिक्स्ड है, सिस्टम का कोई ट्रांसफर फंक्शन है और ये इसका सेंसर का कोई ट्रांसफर फंक्शन है और ये यूनिटी है, के जो है के जितना मैं वेरी करूंगा, ठीक है, जो इसके रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के रूट्स, पॉलिनोमियल होगा ना, वो भी वेरी करेंगे। क्लियर? ठीक है।
सर यस सर। इसका मतलब Yes. क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि आई हैव अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दीज क्लोज लूप पोल्स, ये क्लोज लूप ही है ना, क्लोज लूप पोल्स एज द सिस्टम पैरामीटर लाइक के इज वेरिड, यही है रूट लोकस। लेकिन इसकी टेक्निक, इसको कैसे करना है वो हम बताएंगे आगे। Now, so this become, now you can argue that this thing is now easily done for second order system. हम तो अभी second order system अगर होगा उसका तो हम k बदलेंगे तो हम उसकी quadratic equation easily solve कर सकते हैं, तो हमें क्यों जरूरत है रूट लोकस की। That is true. For a second order system, if we change k and we solve this quadratic equation, we can easily find out the roots by our hand without even using a calculator, let's say. But when it comes to higher order systems, third order system, fourth order system, fifth order system, even for which we don't have actually the equations for the transient response and other things. Okay, root locus actually is a power method. So it is for analysis and also design, both things, analysis and design. Analysis means something is given, we want to find out its features. Design means we want to achieve some features, what is the value of gain and what is the value of other parameters for obviously stability and transient response. So this is the more important thing for it, that it is for order higher than 2. It is more useful actually because for those things we may not be able to solve this characteristic equation easily. अगर हमारे पास हायर ऑर्डर टर्म्स हैं जैसे थर्ड ऑर्डर, फोर्थ और फिफ्थ ऑर्डर है, उसमें कंप्यूटर पे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, वरना कंप्यूटर से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो ये रूट लोकस टेक्निक है अभी आप देखेंगे, आप उसको हाथ से ही सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली गोइंग इवन फॉर ए कंप्यूटर। You can actually find out the system, whether the system is stable at a particular gain, whether the system has a particular transient response, what is the type of transient response it has. So now we look at this thing. We have defined some terms initially which we call as open loop transfer function. This is just for the definition. This is also called as loop gain. This is defined as k, g of s, h of s. Okay? This is for definition purposes, nothing really like open loop, what open loop actually means for it. But we generally use this term because this term is quite often used in this root locus, so we call that as open loop transfer function. You can see here also gs, hs, k, gs, hs जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे यही है, तो इसको हम एक नाम देते हैं open loop transfer function. And if it has a +1, so it becomes obviously a closed loop transfer. Sorry, it is part of the closed loop denominator of the closed loop transfer function, which is this one. So in this case, if we have to find for this one, it will be easy for us to determine the poles, and because we don't have to, because k doesn't impact, k does not affect the pole location. Okay? Whereas in the closed loop transfer function, which is t of s, poles cannot be determined without evaluating the polynomial in the denominator. I hope this is clear. I have just mentioned it, written it like this, but it is very much straightforward. You will see also an example. तो हमारा g of s, h of s जो है, सपोज वो कुछ होगा, ठीक है, k जो है उसके न्यूमरेटर में मल्टीपल होते हैं, तो k की वजह से इस g of s, h of s के इस फंक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, पोल्स पे, क्योंकि न्यूमरेटर में मल्टीपल हो रहा है। अगर इतना ही हम देखेंगे, कोई हमें जिसको हम डिफाइन करते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो k की वजह से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज k मल्टीपल हो रहा है न्यूमरेटर में। लेकिन जब t ऑफ s की बात करते हैं, t ऑफ s ये है k gs by 1 plus k gs hs। t ऑफ s जो है इसके अंदर k का इम्पैक्ट है क्योंकि k की वजह से क्लोज लूप पोल चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से हम उनको इवेलुएट इजीली नहीं कर सकते हैं अगर हायर ऑर्डर सिस्टम हो, तो इसलिए हम रूट लोकस टेक्निक यूज करते हैं। Now, before moving ahead now, we have to just understand one basic concept in this, which is about complex numbers, because root locus is about, let's say, drawing all these things on the complex plane. Or maybe I can just show you something else before I move to that. It may confuse you. Let's talk about an example of this form. अब ये सिस्टम को देख लीजिए. So we have a system which has a gain k1 in the forward path, another gain k2 in the forward path, but because the transfer function is defined in this way, the denominator has s into s plus 10. ठीक है,
जरा मुझे इसमें बताइए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इसका क्या होगा? आप जल्दी बताइए मुझे, आप बताइए। सर ये मल्टीप्लाई होगा ना के हाँ वन बताइए, K1 K2। डिवाइडेड बाय एस s into s plus 10। हाँ उसके जो है उसके रूट्स क्या होंगे? माइनस हम्म, माइनस Under root -2। under root of minus नहीं, S इंटू एस प्लस 10 है, उसका रूट्स क्या होंगे? प्लस माइनस 10 +-10। सर सर एस स्क्वायर 0 प्लस -10, 0 -10। 0 और -10। भैया ये S, एक सेकंड में कुछ बोल रहा था, मुझे एक दिखाना था आपको एक चीज। इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा K1 K2 बाई S इंटू एस प्लस 10। यहाँ लिखता हूँ हाँ सर 0 एंड माइनस 10 ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन K1 K2 बाई S इंटू एस प्लस 10, जिसको हम लिख सकते हैं अगर आप वैसे भी लिखना चाहेंगे। और चूंकि ये यूनिटी फीडबैक है ना, जब यूनिटी फीडबैक है तो एच एस क्या होगा? 1। तो ये हमारा जी ऑफ एस एच ऑफ एस है, ठीक है। के भी बोल सकते हैं आप इसको, के जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो कहने का मकसद है यहाँ पर अगर रूट्स देखेंगे इसके तो वो सिंपली होंगे एस इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू -10। 10। इसका मतलब K1 K2 अगर कुछ भी होगा इस पे फर्क कोई पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्लियर। यही मैं पिछली जो स्लाइड थी उसमें दिखा रहा था। इफ K1 K2 चेंजेस, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कोई फर्क पड़ता नहीं है उसके रूट्स पे, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में रहते हैं। But because these in the closed loop transfer function these come and these become a part of the denominator, so they will impact the roots in closed loop transfer function. So इसका closed loop transfer function बताइए क्या होगा जल्दी? 1 + K1 K2 डिवाइड बाय S + 10। ये यहाँ पे इसका closed loop transfer function है where K is K1 K2, K1 K2 divided by S into S plus 10 divided by 1 plus K1 K2 by S into S plus 10। अगर उसको इवेलुएट करेंगे तो आप देखिए ये आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. where K is equal to K1, K2. K1 K2, ठीक है। अब K is equal to 0 के लिए इवेलुएट कीजिए क्लोज लूप पोल्स। -10 and 0. क्या आएगा? 0 एंड -10 and हाँ -10. -10। अब K अगर मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ। लेट्स से आई टेक K इक्वल टू 5। मैं आपको एक स्टैंडर्ड बुक का दिखाऊंगा ये। K इक्वल टू 5 ले लीजिए, उसके रूट्स बताइए जल्दी। Sir, complex roots -5 + 2 under root 5। No sir। सर इसमें ये -9 and -0 and something. देखो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, मैंने इवेलुएट किया है। -0। K अगर 5 होगा तो s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 5 is equal to 0, s is equal to -10 minus b plus minus under root of b square minus 4ac divided by 2. So it will be something like this, and the roots will be something like this. S is equal to -5 plus 2 root 5 minus 5 minus 2 root 5, which is -9.47 and -0.53. These are the roots at K is equal to 5. 5। Which is very clear because we have done these things, which means as we are increasing the gain, the roots are changing. इससे पहले रूट्स क्या थे? 0 और -10। अब क्या रूट्स हैं? -0.53 और -9.47। इसका मतलब as gain will change, the roots will also change. Clear? Now this thing is self-explanatory because we have done these things earlier also. As we change gain, we can see a change in the roots. And obviously जो roots change होंगे उससे क्या होगा? उससे stability पे फर्क पड़ेगा, उससे transient response पे फर्क पड़ेगा, उससे है ना हर चीज पे फर्क पड़ेगा। हमने देखा है कि
खसूसन ट्रांजिट रेस्पॉन्स में ये सब चीज़ें है ना, दे गो पार्ट ऑफ द रेस्पॉन्स, दे गो इनटू पार्ट ऑफ द रेस्पॉन्स, so obviously they change, and if these roots become positive, then this may turn out to be an unstable system, isn't it, for a particular value of k. Now this is very clear. Now let's look at a table which has been constructed. Let's say I'll just share the screen, book page of the book. दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है बुक का ये पेज? Yes, sir. बताइए k इज इक्वल टू 10 पे क्या है? -8.87 and -1. एक सेकंड में बात करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. अरे सब कुछ ठीक, सही से ठीक. अच्छा मैं चुप क्लास चला कर इंशाल्लाह 8:30 तक, बस थोड़ा लेट ही तो तब पर मिला इंशाल्लाह. हाँ आप शाम ग्रुप से जी आप देख रहे हैं -10 फिर 0, ये जो अभी हमने निकाला -9.47 -0.53, इसी तरह -8.87 -1.13. ठीक है, मैं अटेंडेंस करता हूँ थोड़ा सा बीच में. क्लियर? सो इसमें -15 पे इवेलुएट किया, यानी कि अगर -15 करेंगे, 20 करेंगे, 25 करेंगे, इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 5. यू कैन ऑलवेज डू एनीथिंग लाइक k 1 2 3 4 5 6 7 8. दैट विल जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ these observations है जो भी हम कहेंगे इसको. सो आफ्टर 25 व्हाट इज हैपनिंग, और एट 25 इसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं. जरा आप में से और कोई बात करो, थोड़ा सा एक ही आदमी बात ना करे, मैं थोड़ा सा. तस्दीक, बुरहान, सर जाहिद, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं उसके. आकिब, इस्माइल, फैजान, मंजूर. यस सर, कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं. हिलाल अहमद, हुजैफ. यानी अगर गेन हम 25 करेंगे, सपोज इसमें सब्स्टिट्यूट, तो हमें रूट जो आएंगे -5 -5. ये कौन सा स्टेट है जरा बताओ? -5 -5 मार्जिनली नो सर, ये क्रिटिकली डैम्प्ड. क्रिटिकली डैम्प्ड केस आता है. क्रिटिकली डैम्प्ड में हमारे पास रूट सेम आते हैं. ठीक है, 2 इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स. तो इससे पहले वाला जो था अभी तक वो क्या था फिर, 0 से 20 तक? ओवर डैम्प्ड. ओवर डैम्प्ड. और 30 के आगे क्या होगा? ये अंडर डैम्प्ड हो गया कॉम्प्लेक्स में. Under damped. So we have complex conjugates. So this system will be under damped. ठीक है. What else we had? We had four categories. Undamped. and undamped. Undamped will be when the roots are on the imaginary axis. But in this case, maybe that may not happen. Let's say. So ये जरूरी नहीं है कि इसके रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे आएंगे, हो सकता है नहीं भी आए, कभी भी नहीं. तो ये सिस्टम हर वक्त स्टेबल रहेगा, आप कितना भी गेन बढ़ाइए, लेकिन उसकी जो है डैम्पिंग ना, वो अंडर डैम्प्ड रेस्पॉन्स में उसकी ओवरशूट वो सब बढ़ेगा, लेकिन ये कभी जो है साइनोसॉइडल या उसको कहेंगे ऑसिलेशंस में नहीं जाएगा, नहीं अनस्टेबल बिहेवियर कभी इसका होगा. सिस्टम ये ऐसा है ना. ठीक है. अगर तो ये हो गए एज के वेरीज, यही जो डेफिनेशन थी रूट लोकस की, एज के इज वेरिंग the closed loop poles. ठीक है, we are able to determine. बट ये था सेकंड ऑर्डर सिस्टम, हमने इसको आसानी से खुद से हाथ से करके इवैल्यूएट किया. इसी को अगर हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे, पहले आप देखिए लेफ्ट साइड की फिगर जो यहाँ पे मैं इसको दिखा रहा हूँ, तो मैंने इसको क्रॉस से आपको बताया, क्रॉस से हम पोल्स दिखाते हैं. ठीक है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट k is equal to 0 where it is -10 and again where it is 0. ठीक है. And it moves like this. At k is equal to 5, this is the value. At k is equal to 5 again, यहाँ से दूसरा वैल्यू 9 point कुछ हो रहा है. At k is equal to 20, it is this value. And at k is equal to 20, we have two roots, -3 and -7. चेक कर सकते हैं. k is equal to 20 पे हमारा -7 और -2.76 है. ये सेम चीज यहाँ पे है, आप देख सकते हैं 20 पे. ये जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, -7 point something, 26 या 24, और यहाँ पर -2.76. क्लियर?
समझ में आ रहा है? Yes, So sir. we are kind of plotting these poles on this complex plane or S plane. So as gain is increased, so poles are moving like this. और poles कैसे मूव कर रहे हैं? पोल ऐसे मूव कर रहे हैं, जैसे मैं अभी इसको कलर शेडिंग कर रहा हूँ, पोल ऐसे मूव कर रहे हैं. So they are moving. हाँ? हेलो. K is equal to 0 से K जब बढ़ेगा तो पोल्स ऐसे मूव कर रहे हैं यहाँ से टू द लेफ्ट. ठीक है. और यहाँ से अगर देखेंगे हम इस पोल की तरफ तो K is equal to 0 से जब इंक्रीज करते हैं गेन तो यहाँ से मूव कर रहा है. इसका मतलब ये दो पोल्स हमारे शुरू में थे -10 पे और 0 पे, तो वो कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से राइट. एज द रीच K सर हम इसमें सर नेगेटिव गेन नहीं लेते हैं. किसमें? स्केच पॉजिटिव यूज करान. नेगेटिव गेन मतलब क्या गो? बेसिकली नेगेटिव गेन मतलब गो अशी दिवान तेले अत मतलब ना करानुक शकोइत के सूचन गेन च बेसिकली आसान एम्प्लीफिकेशन. कहाँ थे एरर ये आओ तमिक एम्प्लीफिकेशन सपोज. ठीक है. सपोज RS - CS आवर्स एरर, उसको हम एम्प्लीफाई करते हैं, इसीलिए हम गेन्स देते हैं. ठीक है. जो भी सिग्नल आती है. ठीक है. तो नेगेटिव का मतलब होता है फिर हम उसको एक रिवर्स सिग्नल दे रहे हैं, तो that will not really have any physical significance in this case. Mathematically, it may be possible to do it and solve it, but in physical terms, if we talk about gain, let's say, जैसे अभी हम नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहे थे, उसमें पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है, उसको भी इवेलुएट कर सकते हैं और उससे भी हम कुछ निकाल सकते हैं. ठीक है. लेकिन जनरली जो फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है, अगर सिस्टम को किसी लेवल 1 पे जाना है और वो जा रहा है 0, 1, 2, 3 से, सपोज वहां पे सो वो 0.1, 0.2, 0.3 से जा रहा है, तो जो हमारा आउटपुट है उसको हमें एरर निकालने के लिए उसके साथ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. तो फिजिकली इसकी यही इंटरप्रिटेशन है. अदरवाइज मैथमेटिकली तो कुछ भी ले सकते हैं आप, माइनस के लेकर करिए, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप. ठीक है. जब माइनस के लेंगे हम ऊपर तो वो माइनस के नीचे जाएगा और उसी हिसाब से वो पोल्स को इम्पैक्ट करेगा. ठीक है. ठीक है सर. तो यहाँ पे जो ये वाला, ये तो जस्ट पोल प्लॉट है, इसमें हम पोल्स को प्लॉट कर रहे हैं और इसको दिखा रहे हैं कि ऐसे मूव कर रहा है. 25 तक जा रहा है तो यहाँ पहुंच रहा है, लेकिन 25 के बाद जब 30 जा रहा है तो वो बाहर आ रहा है. बाहर मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट है उसका. जैसे आपने यहाँ देखा होगा -5 + 2.24 J, इसका मतलब वो यहाँ जा रहा है. लेकिन इसके बाद जो भी रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, -5 प्लस और -5 माइनस. ठीक है. They are kind of symmetric and complex conjugates, and they move like this up, और यहाँ से ये दूसरा नीचे जाता है, and they go up to infinity. So यही चीज को अगर मैं solid line से बनाता हूँ without even let's say putting these crosses, if I put just a cross at the beginning which is at 0, K is equal to 0 यहाँ पे, और यहाँ से भी K is equal to 0, दो रूट्स है हमारे पास, एक 0 है और एक -10 है. वहां से अगर मैं प्लॉट करूं इसको तो ये इस तरह एक लाइन बनेगी, डार्क लाइन विद एन एरो. ठीक है. एंड अनदर डार्क लाइन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर विद एन एरो. ठीक है. एंड दे आर काइंड ऑफ ब्रेकिंग अवे एट दिस पॉइंट. ठीक है. सो दे ब्रेक अवे एट दिस पॉइंट एंड वन गोज फ्रॉम दिस साइड, अनदर गोज फ्रॉम द टॉप. एक जाती है टुवर्ड्स पॉजिटिव JY एक्सिस, एक जाती है टुवर्ड्स नेगेटिव JY एक्सिस. तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जो सिस्टम है हमारा जो हमें दिया हुआ है, उसको अगर हम गेन कितना भी बढ़ाएंगे तो वो सिस्टम जो है ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा अंडर डैम्प्ड सिस्टम बनेगा. ठीक है. और ये जो हमें दिखा रहा है कि ये स्ट्रेट लाइंस हैं, इससे हम यही बता सकते हैं फॉर द टाइमिंग दैट द सिस्टम विल नॉट गो इन एनी वे टू द अनस्टेबल बिहेवियर. इसका मतलब ये सिस्टम कभी अनस्टेबल नहीं होगा. ये हर वक्त जो भी हम गेन देंगे उसको, ये ज्यादा से ज्यादा ऑसिलेशन बढ़ेंगी, ओवरशूट बढ़ेगा, सेटलिंग टाइम बढ़ेगा, लेकिन ये सिस्टम कभी अनस्टेबल नहीं होगा. तो ये इसका कोई पोल राइट साइड में नहीं आएगा. इसी तरह हमने उस दिन बात की थी कि लाइंस ऑफ पैरेलल लाइंस और लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस और सिग्मा एक्सिस और j ओमेगा एक्सिस, दे हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग. एनीबॉडी रिमेंबर्स? अब मुझे किसी को याद है कि हमने जब पढ़ा था वो ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस, हमने कुछ कहा था अगर लाइंस पैरेलल होंगी j ओमेगा एक्सिस पे वो क्या होता है, और लाइंस पैरेलल होंगी पीक टाइम सेटलिंग क्या टाइम. मन वर्टिकल हो सर सेटलिंग टाइम हो जाता है. हॉरिजॉन्टल
सर राइज ये ना ये राइज Peak time. पीक टाइप्स है The peak oscillation. और इनक्लाइंड जो है वो थीटा अगर चेंज हो तो जीटा चेंज होता है। ये बैकग्राउंड नॉइज कहाँ से आ रहा है? म्यूट करें जिसका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। शारिक पीर, शारिक पीर, निद्रिमस, शारिक पीर, नाहिया, यस सर। जी बताइए क्या लाइंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द जे ओमेगा एक्सिस का क्या होता था सिग्निफिकेंस? ये हमने ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में पढ़ा था क्लास में। कुछ लाइंस हमने बनाई थी ना पैरेलल, जी सर। और एक लाइंस हमने बनाई थी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल जो हमारी रियल एक्सिस है। कुछ लाइंस हमने बनाई थी पैरेलल और कुछ लाइंस हमने बनाई थी डायगोनल। तो उसका एक सिग्निफिकेंस था, हम कहते थे उसको लाइंस। सरमद, यस सर। बताओ कुछ याद है आपको? शारिक पीर, कोई आप में से बता सकता है? जरा कोई आप में से बताओ, एक भी कोई। कांस्टेंट सेटिंग सर टाइम सेटलिंग टाइम कांस्टेंट रहता था। किसके बारे में? वर्टिकल, अगर हम वर्टिकल की तरफ जाएंगे, वर्टिकल लाइंस Vertical जो पैरेलल होंगी वो क्या है? लाइंस ऑफ कांस्टेंट सेटलिंग Settling टाइम। time. सेटलिंग टाइम। क्योंकि इसमें रियल इंटरसेप्ट सेम है। रियल इंटरसेप्ट यस सर। हर वक्त रियल इंटरसेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो क्या? लाइंस ऑफ कांस्टेंट Peak time. पीक टाइम। पीक टाइम, ठीक है। क्योंकि उसका जे ओमेगा Constant. जे ओमेगा कांस्टेंट रहता था उसका, ठीक है। और हमारे पास जो डायगोनल डायगोनल लाइंस जीटा। जीटा, Percentage over. ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा जो रूट लोकस है जो हमें सामने दिख रहा है, अब इसको हम रूट लोकस कहते हैं। जो ये लाइंस बन गई ना, ये लाइंस एरो, ये हमारा रूट लोकस है। तो ये हमारा रूट ऐसे मूव कर रहा है एज द गेन इज वेरिड, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ रूट लोकस। इट्स द प्लॉट ऑफ दोज क्लोज टू पोल्स एज द गेन इज वेरिड, ठीक है। तो इससे हमें क्या फायदा मिला? एक तो हम ये बता सकते हैं कि जैसे गेन पहुंचेगा 25 पे तो ये क्रिटिकली डैम्प्ड हो जाएगा, और गेन जैसे ही 25 से बढ़ेगा तो ये ओवर डैम्प बनेगा, सॉरी अंडर डैम्प बनेगा, और लेस देन 25 तो अंडर डैम्प बनेगा। और ये जो है इस रेंज में हमें कांस्टेंट सेटलिंग टाइम मिलेगा, ठीक है। इस तरह की हम बातें कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी ग्राफिकली इंटरप्रेटेड बाय द रूट लोकस विदाउट एक्चुअली इवन इवैल्यूएटिंग इट। सो यू डोंट हैव टू इवन इवैल्यूएट देम कि इसमें सेटलिंग टाइम कांस्टेंट रहेगा कि नहीं। आप सीधे बता सकते हैं ग्राफ से ही जी ये आफ्टर दिस मच गेन, अगर आप गेन कितना भी बढ़ाएंगे ये कांस्टेंट सेटलिंग टाइम रहेगा। बाद में इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं उसकी। सो यू कैन ऑलवेज इवैल्यूएट बट यू कैन ऑलवेज do these things just graphically. तो ये आप कह सकते हैं अभी जैसे सेम आर्गुमेंट that this thing was easily done by second order system by hand also, but the power of root locus actually lies in the systems of order higher than 2, where we can, without evaluating it mathematically, the polynomials and other things, we can do it for higher order systems. The same thing, we can easily say when the system will of much higher order will turn into unstable behavior, or will actually have this type of transient response and all these things. Clear? सर जो अगर हम बात करेंगे जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन लाइक 4 डिग्री या 5 डिग्री होगी सर, उसमें तो 5 रूट्स होंगे ना, तो वो हम कैसे इसमें हाँ वो हम देखेंगे ना, दैट्स व्हाट वी हैव टू स्टडी। अभी ये जस्ट आपको ये बता रहा था मैं कि व्हाई रूट लोकस इज इंपॉर्टेंट, सो हाउ वी डू दैट विल सी एज वी मूव ऑन, ठीक है जी सर। सो यही मैंने अभी बात की, that root locus shows us change in the transient response as the gain is varied, over damped to critically damped to under damped, let's say systems. और sometimes कुछ root locus ऐसा भी किसी सिस्टम का बनता है, वो सिस्टम पे डिपेंड करेगा और गेन पे कि उसका सिस्टम that turns into the oscillatory behavior and then finally to the the unstable behavior. So you can
talk from the, you can just depict it from the figure only when it turns into the unstable behavior. And all these things can be done in MATLAB. MATLAB has commands for this R locus command. You can easily find out the root locus with the MATLAB. Put up the transfer function there of any order. root locus को प्लॉट करेगा और आप उससे डायरेक्ट होवर करके उस फिगर पे बता सकते हैं किस गेन पे जो है अनस्टेबल हो सकता है और किस गेन पे ये जो है ऑसिलेटरी बिहेवियर दिखा सकता है. It's more of qualitative evaluation of change in settling time, damping ratio, percentage overshoot, ठीक है, the peak time, ठीक है, and it also talks about stability when a particular value of gain would turn the stable system into an unstable system. So that's what I have told. For higher order systems, it's a powerful technique for the design and analysis. Now let's talk about the properties of root locus. I think now it's a time for me to talk about the complex number game because that's what will be used here. So I just अभी आपको थोड़ा आइडिया आ गया root locus क्या है, कैसे हम बना सकते हैं. हाँ जी सर, जो आपने कहा ना इसमें ऑसिलेशन हो सकती है कभी, तो सर वो साइनोसाइडल हो सकती है? हाँ, ऑसिलेशन तो साइनोसाइडल ही जनरली होगी, चाहे उसी का कोई फंक्शन होगा. तो वो अनस्टेबल होगा फिर? नहीं, वो मार्जिनली स्टेबल हम उनको बोलते हैं. जो भी सिस्टम ऑसिलेट करते हैं उनको हम कहते हैं मार्जिनली स्टेबल. अनस्टेबल होता है वेयर इट इज अनबाउंड. और ठीक है, अनस्टेबल की हमने दो डेफिनेशन बताई थी ना, बीबो डेफिनेशन और उसको हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक डेफिनेशन. एट इंफिनिटी द रिस्पांस इज having some finite value, but or what we can say is the transient response decays to zero. ठीक है, or the natural response decays to zero at infinity, or let's say after some time. But in Bibo definition we say that for any given input, ठीक है, if for any given input, let's say any stable input or any bounded input, the output will be unbounded. किसी भी bounded input से अगर पूरे system में किसी भी एक बाउंडेड इनपुट से भी अनबाउंडेड हो गया तो वो अनस्टेबल है. अनबाउंडेड इनपुट मतलब क्या होता है? इट विल हैव अ वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी at time is equal to infinity. That is unstable. When we talk about oscillations rather than that, oscillations are obviously bounded. So we can say that sine का वैल्यू क्या चेंज होता है? -1 to +1, isn't it? So it is bounded by some constraints. So it's not an unbounded. But since it is kind of not really stable or it's not converging, so we call them as marginally stable. Okay, sir. Now in this root locus, because we are talking about the S plane, इस पे हम ज्यादा बात करते हैं S plane की, इसीलिए इसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हम बात करते हैं रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट की, रियल पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट की, which actually is a complex number. So S plane जो हम बात करते हैं बार बार, ये हमारा complex plane है, isn't it? और हम किसी भी complex number को इसमें हम define कर सकते हैं. ठीक है, complex number is again a number which has some real part and an imaginary part. So because all these control system analysis, all these things actually are about, we talk about in terms of Laplace domain S, or which is actually the complex domain. So we need to brush up a little bit about complex numbers, and their properties, just maybe 10 minutes, so that we can understand how we can actually move about plotting the root locus and other things. So I've just put up on this, on the screen, you may be able to see, I'm just writing S. S for us is a complex number which can be written as sigma plus j omega. ठीक है? Now sigma is the real axis, part of the real axis, and omega is the part of the imaginary axis, where we have j as the indices defining that this is the imaginary part. Now you must have done these things before, that we can write this in the polar form also. ठीक है? So this can be put up in the complex plane like this, where we have some let's say this S is suppose this one. By definition it has a real part which is sigma, this one, and it has an imaginary part of this one. Okay, let's say this is j omega again. I just call it j omega axis. We can write it again and again, but let's say this is some sigma and this is some j omega part of that. ठीक है, ये हमारी सपोज समझो x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये हमारा x, y है. x, y हमारा कोई वेक्टर डिफाइन करता है.
ये कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली वेक्टर ही होते हैं बिकॉज इनके दो कंपोनेंट्स तो होते ही हैं, which is the real part and the imaginary part. So we can define complex numbers by a vector like this, S. So S is a complex number or S is a vector which has two components, that is the real intercept and the imaginary intercept. Now this vector can now be also represented by in the form of magnitude and direction. Clear? आप में से कोई बता सकता है कि अगर इस वेक्टर की मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करूंगा मैं? Under root of real part imaginary. हाँ सर tan इनवर्स वो उसका डायरेक्शन है। m अगर इसका मैग्नीट्यूड मैं निकालूंगा तो वो क्या होगा? Under सिंपल है real इसका, part यानी इस हाइपोटेन्यूज का क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर प्लस लेट्स से ओमेगा, अगर कोई डिफाइन करता है तो ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और जो इसकी डायरेक्शन होगी थीटा, ये एंगल डिफाइन करता है, एंगल थीटा क्या होगा? सिंपली tan inverse of tan इनवर्स of y by x which is imaginary. जो आपका j ओमेगा पार्ट बाय सिग्मा है। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट इज द इमेजिनरी इंडिसेस। ठीक है, इसका मतलब इस वेक्टर को हम, इसी वेक्टर को s इज इक्वल टू सिग्मा प्लस j ओमेगा को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर? ये तो इतना क्लियर है। Yes sir. अब अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, जैसे मेरे पास ये समझो आप, ये एलिमेंट्री पार्ट है इसका, एक्स एंड वाई या सम वेक्टर। अब मेरे पास कोई फंक्शन है इस तरह, जो हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं, एफ एस, which is something like what we have already defined. It could have a general function like s plus z1, s plus z2, something like this, s plus p1, s plus p2 वगैरह। ठीक है, तो अब s क्या है? s तो वही है ना, सिग्मा प्लस जी ओमेगा। ठीक है, Yes sir. so s is a complex number, isn't it? S is a complex number. So if I substitute a complex number in this, where z1, z2, p1, p2 are nothing but numbers, real numbers, isn't it? Because we have seen that there are something like s plus 5, s plus 4, s plus 1, s plus 2, कुछ भी हो सकता है। So in general z1, z2, p1, p2 सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर मैं s के बदले ये सिग्मा प्लस जी ओमेगा या कोई भी ना वैल्यू डालूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये फंक्शन क्या बनेगा? कोई बता सकता है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा? Complex number भी आएंगे ना इसमें फिर? सर कॉम्प्लेक्स फंक्शन शायद। ये इस वक्त लास्ट पे कॉम्प्लेक्स नंबर ये इस वक्त कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, लेकिन जब उसको इवेलुएट करेंगे बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीपल करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लिखूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर s इज इक्वल टू 2 प्लस 3j एग्जाम्पल। ठीक है, अगर एफ एस लिखना फंक्शन सिंपल का मतलब एफ एस में s प्लस 2 का ट्रांसफर फंक्शन s प्लस 3 बाई, तो ये क्यों s थी बन गई थी, ठीक है, s इंटू या कहाँ थी पावर थी उतना एग्जाम्पल। ठीक है, अगर ये इस तरह कोई मैं ले लूंगा, अगर मैं इसको इवेलुएट करने बैठूं तो मुझे s को सब्स्टिट्यूट करना क्या है? 2 प्लस 3j प्लस 2 प्लस 3j प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3j 2 प्लस 3j प्लस 1 2 प्लस 3j प्लस 5। ठीक है, तो ये इसका रियल और रियल ऐड हो जाएगा तो 4 प्लस 3j आ रहा है समझ? 2 प्लस 3 5 प्लस 3j divided by 2 plus 3j, 2 plus 1 is 3, 3 plus 3j, 7 plus 3j। अब मैं सारा तो सॉल्व नहीं करूंगा इस वक्त मैं, लेकिन आपको दिखाऊंगा। और मैं इसको मल्टीपल करूंगा, 4 5 20, 4 3 12j, 3 5 15j, 3 9j स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेट्स से डिनोमिनेटर आप खुद करेंगे इवैल्यूएट अगर आप करना चाहेंगे। सो इट्स लाइक 20 प्लस 12 plus 15 is 27j plus j square is -1 -1 minus 9 -9 by denominator, which is equal to 20 minus 9 is 11, go 11 plus 27j divided by denominator,
आओ ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही Yes, sir. तो फिर यस सर। तो आगे तो डिनोमिनेटर क्या है सपोज अगर हम बिलेक्ट किस एग्जांपल ऑफ डिनोमिनेटर सपोज 11 2 प्लस 4 जे जन उस डिनोमिनेटर वह ना इवेलुएट कर अम खतर टेक्निक कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स Conjugates. मल्टीप्लिकेट कंजुगेट उसी ना Conjugate. सो ये क्या गेस Yes, sir. 11 2 22 11 4 44 27 2 54 जे ये प्लस माइनस 108 जे स्क्वायर ठीक है 2 to the 4 minus 4 to the 16 ठीक है अच्छा ठीक कि नहीं गलत a plus b into a minus b a square minus b square Yes, sir. लेकिन b square क्या होगा 16 j square तो ये प्लस होगा प्लस Plus. है ना क्योंकि j square इसका -1 होगा और माइनस ऑलरेडी है साइन तो प्लस हो जाएगा तो ये सपोज हो जाएगा 22 108 j स्क्वायर भी -1 हो जाएगा है ना यहाँ पर भी -1 हो जाएगा तो माइनस प्लस 108 प्लस 22 इज 130 130 54 minus 44 is plus 10 j divided by 20 तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी कुछ आएगा लगभग सपोज 6.5 प्लस 0.5 j फाइनली क्या द्राव्य Complex. तो ये फंक्शन भी Complex. कॉम्प्लेक्स नंबर ही है इसका मतलब अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एस इस तरह का तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ठीक है अगर उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मुझे अब निकालना हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो वो इस तरह होगा दिस थिंग आपने देखा ये साइन पहले इससे पहले कभी जैसे समेशन होता है ये भी आपने देखा होगा कभी मैथमेटिक्स में जैसे समेशन होता है ना समेशन साइन समेशन क्या होता है जो भी टर्म्स हैं सपोज एन आई इज इक्वल टू n1 प्लस Product. n2 हाँ Product ये हाँ signify करता है ना और अगर इस तरह होगा ना एन आई इसका मतलब है n1 n2 मल्टीप्लाई n3 मल्टीप्लाई ये प्रोडक्ट है इनका ये समेशन है इनका ठीक है ये प्रोडक्ट हम यूज करते हैं सो इट्स लाइक इफ आई हैव z1 z2 s प्लस z1 s प्लस z2 s प्लस z3 उन सब का अगर हम मुझे निकालना हो इस फंक्शन का तो इट्स नथिंग बट इट्स एक्चुअली बाय डेफिनेशन क्या है s प्लस z1 s प्लस z2 प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स इजंट इट so I'm writing product of numerators complex factors divided by product of denominators complex factors so fs for us is a complex number now ये हमारा fs क्यों है आपको ध्यान से समझना है मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन जैसा है तो हम अभी वही बात करेंगे जो हम आगे यूज करना चाहेंगे GS HS वगैरह अब हम fs की तरफ से उसको समझाना चाह रहे हैं so इट्स पोलर रिप्रेजेंटेशन अगर हम बनाएंगे अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की fs की उसका भी क्या होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ना क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड होगा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेंथ्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ पोल लेंथ्स इस तरह मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ ये वाला तो आप क्या कर सकते हैं या तो एक एक करके इनको इवेलुएट कर सकते हैं s प्लस z1 जैसे अभी हमने किया यहाँ पर इवेलुएट s प्लस z1 s प्लस z1 जंशी की ये ठीक है या ये फाइनली हमको ना सेड मैग्नीट्यूड इसका अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है ना वो यामिक प्रोडक्ट बेइम बितासन यामिक प्रोडक्ट मगर क्यों मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट आज फाइनली यामिक टोटल मैग्नीट्यूड यामिक कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है डिवाइडेड बाय इस यामिक डिनोमिनेटर वन चूंकि कंट्रोल सिस्टम ने कत कर इसलिए वन जीरो लेंथ वन जीरोस z1 और बन वन पोल्स अस हेको जीरो लेंथ डिवाइडेड पोल लेंथ s प्लस z1 प्लस मैग्नीट्यूडस मज यह सिर्फ मैग्नीट्यूड और अमिक डायरेक्शन आसि थीटा समेशन ऑफ जीरो एंगल्स यहिंद जीरोस यहिंद एंगल्स आसन हेको एंगल त कड़ित
यह जन गोडनुक s plus z1 s plus z1 गसान evaluate s plus z1 बना एंगल हेको ना कड़ित छुना tan inverse 3/4 छुना क्लियर यस सर लेकिन यह समेशन क्या बहुत वन summation of these angles minus summation of pole angles ना पाई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कह न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर तक इथे कनी angles evaluate इथे कनी गसान summation of zero angles minus summation of pole angles. This will be clear from here also, so we can write it this way: summation of angles of the s plus z यह angle है credit minus summation of angles of pole will give us the angle or the theta of the function. Uses function चु तमिक so इस complex number बने तमिक जो है डायरेक्शन दिया सीधे ठीक है. Now ये चीज पर ब्रोट वुचु तो योकुन s plus a जंच s हो वन s हेको न सित कन s है ना एम ब्रोट s क्या छु सिग्मा प्लस j ओमेगा छु ना सो हेको न सित कन मगर थे जो याद कत पर शुरू गसा जीरो origin अगर अब s plus a लिख बि क्या ऐड करात कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ए पार्ट a मतलब गो रियल पार्ट ना करें ऐड ना करें रियल पार्ट ऐड इसका मतलब है रियल पार्ट जो इसका है उसको मैं कुछ ऐड कर रहा हूं लेकिन कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या रह रहा है सेम है ना सेम रह रहा है ना 3j यस सर कॉम्प्लेक्स पर गो हाइट से सेम ये गई शिफ्ट वही बन लगभग इतने ये अगर s छु मिवन या सिग्मा प्लस j ओमेगा छु s प्लस a बन इतने हमें इंटरसेप्ट इस रियल इंटरसेप्ट है सुबह सिग्मा प्लस a और ये रोज j ओमेगा क्योंकि तब सिर्फ a गसा ऐड टू द रियल इंटरसेप्ट इसलिए कैसे रियल इंटरसेप्ट सिग्मा उस होता है तब कैसे ऐड वन सिग्मा प्लस a तो ये बन s प्लस a. क्या क्लियर फैजान दोनों फैजान यस सर सरमद बुरहान हिलाल यस सर उमर सुहेल यस सर तो इसको लेकिन अगर मैं अब थोड़ा सा एक और शिफ्टिंग करूं मैं इसको ऐसे करता हूं rather than writing this I write it this way now. Is it clear where I am saying Yes. rather than writing sigma plus a I will write it again at sigma only and j omega I'll shift this back to minus a. So rather than starting at origin can I start it at minus a then how much I need to move माइनस ए A. फ्रॉम टू देखो अभी तक सिग्मा प्लस ए था रियल में सुपर माइनस ए करा वापस नहीं वहां पाथ कुन नहीं वेक्टर स्टोन में शिफ्ट करा वो मैं श्योर सिग्मा ही पकुन 0 पेट छुना और योर j ओमेगा पकनी पकुन so I can show this thing also this way so this and this is equivalent. किसी को इसमें डाउट है ये वेक्टर अलजेब्रा का सिंपल शिफ्टिंग थ्योरम है सो आई एम शिफ्टिंग अ वेक्टर rather than starting that vector defining that vector from the origin I am defining it from the an intercept negative intercept like minus a on the real axis though this and this is not obviously same this cannot be same these are two different things but this and this is same. So I am defining a vector called s plus a which is defined from origin but I can show it in this way also in the vector form. I shift it back to this and I have intercept of sigma from the origin and j omega from this side. Clear? यस सर तो इसमें z so s plus a ये क्या था फिर s plus a इसको हम क्या डिफाइन करते हैं is a complex number now s is a complex number now s plus a is again a complex number and can be represented by a vector drawn from 0 of the function to the point s 0 of the function ठीक है अभी तक s था s का 0 क्या है या जिसको हम कहें ओरिजिन ही है क्योंकि s खाली है जब s plus a है सपोज ठीक है
अगर आप जीरोस की बात करते हैं तो s प्लस ए सपोज जीरो है और s प्लस बी सपोज पोल है شنو كان فانكشن اف اوف اس اگر يتكن جو simple function हम मुझे इमेज s प्लस ए s प्लस बी ठीक है इसका जीरो क्या है minus A, पोल minus B, है ना तो जीरो गो यम फंक्शन हो कि जीरो ना जीरो उसी से ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये माइनस ए इसी तरह अगर पोल माइनस बी होगा तो मुझे दूसरा वेक्टर जो बनाना है उसको मैं इस तरह बना सकता हूँ सिग्मा j omega I can write this way maybe if I have the similar one this is minus b here and this starts here this is sigma this is j omega so this is s plus b ठीक है s plus b की definition क्या है I am starting this complex number from the pole of the function and here I can say I am starting this function from the zero of this function zero इसका क्या है minus है I am starting from zero इसीलिए s plus a की general definition आ सकती है a complex number can be represented by a vector drawn from zero of the function to the point s or pole of the function मैंने यहाँ पे लिखा है from pole of fs or zero of fs at minus z1 या minus p1 जनरल हमारा क्या था s plus z1 s plus z2 divided by s plus p1 s plus p2 तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ठीक है और ये जो वेक्टर्स होते हैं इनके एंगल्स कहाँ से हम डिफाइन करते हैं ऐसे है ना पॉजिटिव रियल एक्सिस तो पॉजिटिव रियल एक्सिस जो है ना ये वाली इस तरफ पॉजिटिव रियल एक्सिस है ये वाला ये होता है पॉजिटिव रियल एक्सिस इससे मेजर करके एंटी क्लॉकवाइज इज द एंगल टू दैट वेक्टर so the angle is measured from the positive extension of real axis of a vector drawn from zero of the function or the pole of the function उसी को एंगल बोलते हैं थीटा यहाँ पे भी यहाँ पे ठीक है ये चीज क्लियर हो जाएगी आगे अगर हम इसकी बात करते हैं एक एग्जांपल लेंगे हम हमारा फंक्शन अब इस वक्त ये दिया है इसको आप ध्यान से देखिए वी हैव 2 minutes so we have fs is an example s plus 2 s plus 4 in the numerator s into s plus 3 s plus 6 in the denominator अब इस वक्त हमें ट्रांसफर फंक्शन है किसी चीज की हम बात नहीं कर रहे हम सिंपल एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं और उससे कॉम्प्लेक्स नंबर ही जनरेट होगा हम कह रहे हैं कि आप इस फंक्शन की वैल्यू ढूंढिए इस पे कि मान से कहा था फंक्शन छू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3xy अमुक वैल्यू छोटे सा कोई वैल्यू ऑफ x तो y एस्पेक्ट ना ठीक है तो इसी तरह आपको इस पूरे फंक्शन का जो फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकलेगा उसका वैल्यू ढूंढना है इस पर जहां पर ऐसे ही होगा उसके लिए आप क्या कर सकते हैं इजीली जो है वेक्टर से हम क्या करते हैं हम यही बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन जे वाई एक्सिस और सिग्मा एक्सिस ठीक है सिग्मा एक्सिस जे वाई एक्सिस जे ओमेगा एक्सिस वहां वो क्या मिले जीरोस क्या शामिक -2 and -2 तो -4 को -2 शिकत बनाओ गोल अच्छा -4 शिकत बनाओ गोल जीरोस पोल्स क्या शामिक 0 -3 -6 0 पोल में क्रॉस सीरीज बनावा -3 तो -6 ठीक है अशुद्धित फंक्शन ये मगर अशुद्धित ये इवैल्यूएट करने -7 9 पॉइंट प्लस 9j उस करो -7 योकन पक्को इनको -7 चाहिए 9j चाहिए इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ठीक है +9 छुना +9 जो +9j -7 को एक ही पॉइंट अगर ऐसे त्रावक ना ये जाए पर वेक्टर है ठीक है ये सारी वेक्टर ये लाइन क्या डिफाइन करना कुछ वेक्टर तला मैंने वन लाइन एक ये लाइन एस